नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छावड़ा, आप देख रहे हैं द सिटी। दोस्तों आज हम पहुंचे शहर के वीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से जो आप पूरा यहाँ मेला लगा हुआ है। नॉलेज फेयर 2025 की जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं वीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल लगातार शिक्षा जगत के साथ साथ खेल जगत में, एक्टिविटी में लगातार अपना नाम चमका रहा है, बुलंदियों को छू रहा है। सो उसी के तहत आज जो वीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो यह मेला लगाया गया और नॉलेज फेयर 2025 आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह छोटे छोटे बच्चों ने जो मेहनत की है, किस तरह बच्चों ने जो अपने अलग अलग मॉडल, अलग अलग प्रोजेक्ट जो तैयार किए हैं। और इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स, एनवायरनमेंट, हर चीज़ का जो इन्होंने जानकारी देने की कोशिश की है। छोटे छोटे बच्चों ने जो मेहनत किया, अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग मॉडल जो तैयार किए हैं, आप देख पा रहे हैं। सो यहाँ तमाम जानकारी लेंगे स्कूल मैनेजमेंट से, स्टाफ सदस्यों से, अभिभावकों से और बच्चों से जानकारी लेंगे किस तरह बच्चों ने जो मेहनत की है, किस तरह बच्चे जो यह प्रयास कर रहे हैं लगातार। वीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो नए कदम जो बढ़ा रहा है शिक्षा जगत की और खेल जगत की और एक्टिविटी की ओर। सो यहाँ तमाम जानकारी लेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ। Here I would to mention that there is a Mr. Baldev Singh between us, our chief guest for today. So students, I would really feel immense. Please welcome them with a big round of applause. Your presence means a lot to us. बेटा क्या नाम है? ये जी मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसकरण सिंह है जी। क्लास? मेरी क्लास +2 साइंस है जी। हाँ जी। हाँ, क्या प्रोजेक्ट जो आज तैयार किया? ਇਹ ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲੈਵੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਗਨੇਟਸ ਦੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ। Myself Amisha, and here are my class teammates Praneeth and Harman. Today I am here to describe our model lemon battery. Future needs the alternate source of energy which is non-exhaustible. So for that we prepare a model lemon battery. A lemon is a simple electrochemical cell which produces electricity, and a lemon uses as an electrolyte. And the main material which is used in lemon battery is zinc nail, copper nail, LED lights and lemon etc. क्या लगता है नींबू से जो बिजली तैयार की जा सकती है? ऐसे ही? Yes sir. हाँ जी, Yes sir. फ्यूचर में ये यूज की जा सकती है। थैंक यू। विधि हाँ, क्या जो आज मॉडल तैयार किया आपने, क्या दर्शा रहे? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਅਪਣਾਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ याद करवाता है? ਹਾਂਜੀ। शुक्रिया। ਜਸਮੀਤ, कौन सी क्लास है? +2 ਆਰਟਸ। हाँ, क्या मॉडल जो आज तैयार किया? ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਸੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਬਟ ਕਈ ਲੋਕ ਜੋ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਜੋ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਇਆ ਸਾਡੇ O2 ਹੈਡ, ਅਸੀਂ 2010 ਚ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। क्लास? 9th। क्या मॉडल जो आज तैयार किया?
ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਹੜੀ है। क्या लगता है ये जो गोल्डन टेम्पल का जो एक दृश्य बनाया गया? हाँ जी। जी साहब कैसे हो? बना लिया। हाँ बस चल रहा है। अब आप करके दिखाओ। हाँ करो। अब आप करके दिखाओ। बोल रहे हैं। सारी बोल छावड़ा साहब तो दोबारा कर लेंगे, तुसी करो दोबारा। This is the 3D model of our school, which shows the cartography and architecture. Cartography is mainly based on the science and art of making art, map making, and this is the small things which shows the how we make our structure of the building. So basically, sir, we have made this by using the geographical ways like map-based planning. So firstly, before making this, we have planned everything like length and width of these buildings, then the placement of stage area and the playground area and this main gate. यानी कि पूरा स्कूल जो है एक मॉडल में दिखा दिया आपको। So the second way is layout accuracy. Our model show classroom, corridors, admin block and windows and main door and parking areas. Sir, we wanted to tell that how our model relates with architecture. Architecture is the art and science of designing building. In our model, we have shown. We worked as a team for about 1.5 months. Through this, we learned teamwork, skill, motivation, development, etc. We are too lucky to be a part of this institution and also grateful. We make this part of this building and like the first floor, third floor and second floor and this cafeteria area and stage and backstage. Like a door, window, main gate, parking area, third gate, stage, cafeteria. कितना समय लगा इस मॉडल को तैयार करने में? 1.5 कितने बच्चों की टीम है जो ये तैयार कर? 8 बच्चों की टीम है सर, सारों ने इक्वल अपना किया है। कितने दिनों में ये तैयार होगा? ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ हमने किया है। इसमें हमारे टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है, स्टाफ मेंबर ने भी बहुत किया है। क्या लगता है कि मॉडल के जरिए पूरे स्कूल की बिल्डिंग दिखा दी आपने? हाँ जी बिल्कुल दिखा दिया, क्योंकि हमने हर चीज़ें बारीकी से एक्सप्लेन किया, बिल्कुल रियल लाइफ स्ट्रक्चर बनाया 3D में। कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये अलग? ये 11th +1 आर्ट्स के बच्चे हैं। +1 हाँ जी। जैसा आपने देखा +1 के छोटे छोटे 8 बच्चों ने किस तरह पूरे स्कूल की बिल्डिंग जो यहाँ सामने उतार दी, किस तरह मेहनत की बच्चों ने, एक एक क्लासरूम, एक एक जो बिल्डिंग का एक एक जो स्टेप दिखाया है, किस तरह बच्चों ने यहाँ मेहनत की है। आप देख पा रहे हैं और भी मॉडल जो है इस तरह के जो दिखाएंगे, बच्चों ने यहाँ मेहनत कर रखी है। क्या नाम है? Krishma, क्लास 12th साइंस। क्या मॉडल जो आज दिखा रहे हैं? ये चंद्रयान 3 पे मॉडल बनाया गया है। चंद्रयान 3 एक लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है जो कि इसरो कंपनी है, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से लॉन्च किया गया था। ये जो चंद्रयान 3 है ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और ये सक्सेसफुली लैंडेड हुआ था मून पे 23 अगस्त ऑफ 2023, जो कि SDSC SHAR श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट चंद्रयान 3 है जो वो न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस है। जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाता है तो कुछ गैसेस है जो वो उसमें से निकलती हैं, जिसकी वजह से अर्थ है जो उस पर फोर्स लगाती है और जो चंद्रयान है वो लॉन्च होता है। This mission showed the India's strength in science and technology. It also inspired the millions of students to dream big and work hard. Now इसकी working पे focus करते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Left 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LTM-3 M4 rocket carrying India's prestigious. इस तरह आपने देखा छोटे छोटे बच्चों ने जो आज चंद्रयान 3 का जो प्रोजेक्ट बनाया, मॉडल बनाया, और चंद्रयान 3 जो है अपनी सक्सेसफुल जो उड़ान के साथ आप देख पा रहे हैं तस्वीरें VN सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण से। आज VN स्कूल प्रांगण में जो नॉलेज फेयर जो लगाया गया है और स्टाफ की तरफ से जो गेम्स अलग अलग अभिभावकों को खिलाई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? सर अभिभावक जब वहाँ से सारा घूम के आएंगे, सारे मॉडल्स वगैरह देखेंगे, तो उनके एंजॉय करवाने के लिए हमने ये गेम्स वगैरह लगाई हैं। तो इससे जो पेरेंट्स हैं उनका थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाएगा और साथ में वो गेम्स का लुत्फ भी उठाएंगे और गेम्स का भी। अभिभावकों की थकान दूर करने के लिए यहाँ जो
स्टाफ काम कर रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। साथ में उनको चाय कॉफी भी दी जाएगी और साथ में उनको गेम्स खिला के उनको एंजॉय करवाया जाएगा। किस तरह की गेम जो यहाँ लगाई? अलग अलग टाइप की गेम्स हैं सर, जैसे ये कप्स वगैरह है, इनको इकट्ठा करना है, ये हमारी पैटर्न फॉलो करने वाली है। जैसे ये पैटर्न दिया हुआ है, इसके हिसाब से हमने इसको करना है, जो फास्ट करेगा वो विनर है। अच्छे हैं बच्चों की तरफ से नॉलेज फेयर जो लगाया गया, क्या कुछ कहेंगे? जी, ये आज यहाँ पे वीएन स्कूल में आके जो नॉलेज फेयर का हमने अवलोकन किया है, नॉलेज फेयर बहुत ही एक राइट स्टेप है इस डायरेक्शन में, क्योंकि बच्चों को जो प्रैक्टिकल नॉलेज इसके माध्यम से मिलेगी वो किताबी नॉलेज से कहीं ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। और बच्चों ने इतने अच्छे अलग अलग सब्जेक्ट के मॉडल्स किए हैं। यूजुअली क्या होता है, सिर्फ साइंस के ही मॉडल रखे जाते हैं, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइंस के अलावा एनवायरनमेंट के, मैथमेटिक्स के, इवन लिटरेचर के यहाँ पर मॉडल्स हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसकी कार्यान्वयन में उचित कदम है। लेकिन इतिहास के साथ जोड़ा जा रहा है, क्या लगता है आज युवाओं को इस चीज़ की जरूरत है? जी बिल्कुल, जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल युवा थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक जाता है नई उम्र में, तो जैसे हम बच्चों के लिए अगर इस तरह की चीज़ों का रेगुलर जो हम आयोजन करेंगे अगर, तो बच्चों की जो दिशा है वो सही रहेगी और राइट डायरेक्शन में रहेंगे, टीचर्स की गाइडेंस में रहेंगे और अच्छा आगे जाके परफॉर्म करेंगे। तो जिस तरह सर क्या कुछ कहेंगे आज वीएन स्कूल में जो बच्चों की तरफ से नॉलेज फेयर जो लगा? सर ये जो मैं कहूँगा कि स्कूल ने बहुत अच्छा उपराला किया है कि थियोरेटिकली बच्चे तैयार होते हैं लेकिन उनको प्रैक्टिकली नहीं पता होता। हमारी प्रोफेसर टीचर्स की ये कंप्लेंट रहती कि बच्चों को प्रैक्टिकली साउंड करना चाहिए और वीएन स्कूल ने ये फर्स्ट स्टेप लिया, इसको देख के बहुत अच्छा लगा। और साथ में जितने भी फील्ड हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, मैथमेटिक्स, उनको प्रैक्टिकली इन्होंने साउंड किया है। कुछ कहेंगे आज वीएन स्कूल प्रांगण में पहुंचे हैं और बच्चों की तरफ से जो नॉलेज फेयर लगाया गया, क्या कुछ? नॉलेज फेयर में काफ़ी अच्छे मॉडल्स बनाए बच्चों ने, काफ़ी इनोवेटिव हैं और बहुत सारे तो जो अभी उभरती हुई नई टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बनाए हैं। इनको देख के काफ़ी अच्छा लगा। क्या लगता है युवा पीढ़ी जैसे नशे की तरफ बढ़ रही है, अगर इस तरह की तरफ ध्यान देंगे बच्चे तो क्या लगता है उन नशों से भी बच पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर बच्चों का ध्यान पढ़ाई में होगा और इस तरह की एक्टिविटीज़ में होगा तो ऑब्वियसली बात है कि नशे से दूर ही जाएंगे। हाँ सर, किताबी शिक्षा हर स्कूल में दी जाती है, किताबी शिक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की जरूरत है, इस तरह की एक्टिविटीज़ की जरूरत है। क्या लगता है वीएन स्कूल ने जो पहल की है किस तरह की? देखो, दिमाग का मेंटल सेटअप ही ऐसा होता है कि बच्चा करके ज़्यादा सीखता है बजाय कि पढ़ के मतलब बोर हो जाता है और उसको कई बार नहीं समझ में आता, लेकिन जब प्रैक्टिकल वे में करता है तो और अच्छे से सीख पाता है। स्कूल कैंप्स में जिस तरह का नॉलेज फेयर लगाया गया है बच्चों के, आज छोटे छोटे बच्चों ने जो मेहनत की है, क्या कुछ? सर ऐसा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर काफ़ी कुछ काम कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर स्पेशली लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय सीइंग एक्टिविटीज़ के द्वारा जो एजुकेशन है उसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्रिएट होता है और स्टूडेंट्स जो है वो अपनी स्टडी के साथ हार्टली अटैच हो जाता है। अक्सर हम अगर डेली स्टूडेंट्स को बुक्स ही पढ़ाएंगे तो वो स्टूडेंट फेडअप हो जाते हैं, थ्योरेटिकली वो चीज़ नहीं सीख सकते जो प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। तो all these models are in the form of the practicals of the various subjects। अब इंग्लिश लिटरेचर है सर, कोई सोच नहीं सकता कि इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर भी कोई मॉडल बन सकता है, तो हम लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर को भी हमारे स्टूडेंट्स ने मॉडल के फॉर्म के अंदर वो सबके सामने लेकर के आए हैं और वही लिटरेचर जिससे स्टूडेंट बोर हो जाता है, भागता है, तो उसको लर्निंग बाय डूइंग करके जो सीखेंगे तो आई थिंक उनकी पूरी लाइफ के अंदर आज से 50 साल बाद भी उनके माइंड के अंदर ये जो चीज़ होगी वो भूलेगी नहीं। तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है अपनी स्टडी के साथ जो है वो हार्टली जुड़ जाए। सर कह सकते हैं कि आज वीएन स्कूल के हजारों बच्चे जो है वैज्ञानिक बनने की तैयारी में। यस सर, आप देख रहे होंगे कितने वर्किंग मॉडल्स, कितने मैथमेटिक्स के मॉडल्स यहाँ जो हैं वो स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। वर्किंग मॉडल के ऊपर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। जब हम किसी चीज़ को वर्किंग में देखते हैं तो वो हमारे माइंड के अंदर जो है ना जी वो
100% उसकी बेसिक थ्योरी, प्रिंसिपल, उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं सब कुछ माइंड के अंदर स्टक कर जाते हैं, और वो स्टूडेंट इंटरेस्ट के साथ जब करेगा तो उसको भूलेगा ही नहीं कभी। और इस सिमिलरली हमारे पास जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, अब आपने देखा होगा आगे कि कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी अपने बहुत बढ़िया मॉडल बनाए हैं। सिमिलरली आर्ट्स के स्टूडेंट्स, सिमिलरली जो हमारी पंजाबी सब्जेक्ट है जिसको अमूमन ध्यान जहाँ पर नहीं दिया जाता, हम सिर्फ उनको पढ़ाते हैं, तो यहाँ उन्होंने आज जो कल्चर है उसको एक मॉडल के जरिए हम सब के सामने लेकर के आए हैं। देखने में भी बहुत बढ़िया लगा है। और हमारे यहाँ तहसीलदार साहब आए हैं, उन्होंने बड़ी कीन इंटरेस्ट के साथ जो है हर मॉडल का उसको एवेल्युएट किया है, उसका मुआयना किया है, स्टूडेंट के साथ डिस्कशन की है, उनसे बेसिक प्रिंसिपल्स उनसे पूछे हैं। तो मेरे को लगता है कि उन्होंने भी ये बात कही है कि ये एक बहुत अजीब, और मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा जो मैं आज यहाँ इस स्कूल में आकर के देख रहा हूँ। तो हम सबको भी बड़ा गर्व होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा लर्निंग बाय डूइंग से इंटरेस्ट के साथ, यूँ नहीं होना चाहिए कि घर पे पेरेंट्स कहें आप पढ़ लो, स्कूल में टीचर कहें फोर्सफुली कि आप पढ़ लो। बच्चा जब खुद पढ़े, खुद जब अपने एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट हो, उसी को पढ़ाने में और उसी को पढ़ने में मजा आता है जी। थैंक यू।